what we are going to discuss, right? We'll start with the OAuth 2.0. Before that, whatever we covered, right? At least एक रफ आइडिया आ गया, राइट? एंड कोड तो आपके पास है, मतलब you have all the code access to the GitHub, or you, if you coded, then it's in your local. So you understood, you know, the high level idea of the Spring security, right? Yes. अभी आते हैं OAuth 2.0. ठीक है, let's see, let me share my screen and just नहीं, मैं आज अपलोड करता हूँ। आई थिंक लास्ट 3-4 सेशन यूट्यूब में, आई डोंट नो, आई वाज गेटिंग सम issue, but I am uploading today. After that, I all session will be uploaded in YouTube. ठीक है, Ratul. Okay, we are just starting. Okay, so let's see what are the things, right? We are going to start with OAuth 2.0. So what is that? Let me go to the slide. Yeah. So basically, whatever Spring security we have implemented, right, that was very specific to the Springs. The way Spring implemented it, that is very specific. But nowadays, what happened, that technology changed its own way in its certain time, right? Earlier days, right, every bank or every big institution have their all sort of big application, right? And they have their separate DevOps engineers, and they have their own support team, own operation team, and that is going good. That there is no hurry. But gradually people realize that okay, it's time to break your things, right? To make it more resilient, make it more available, make it more independent, right? Then if you can think of that, what Spring security or whatever security mechanism we implemented, that is a bottleneck, because every time either you need to give the username password, or you need to use, that means everything is a same code in a same code, and there is no standardization, right? How we are going to implement the whole flow, right? So each and every application, right, how they will work, they will uh, you know they will maintain their own authentication process, they will maintain their own databases. Or if you go to any organization, right, you are working for organization, I think Ratul and Samres, you might understand it better. Every organization has their own single sign-on server or single sign-on network. Actually, how it works? Single sign-on means, what does it mean? It means if you are inside a application, all they are not going to, suppose they have their own inventory system. Like there is one system which is being used by that company, right? But to do a login, right, you need some username password, and kind of there are five system, right? So you need to remember five username password, you need to register everywhere, right? So instead of that, every company, what they do, they will give you a SSO login password. Every organization will first route you to login, right, using that SSO. So one username, one password will be accepted everywhere, right? These are the strategy, every organization, every application was looking for. Then this OAuth 2.0 came into picture. Now question is, what is OAuth 2.0 will come later, but on a basic understanding, something in your, will come into your mind, that then whatever we learn or whatever we discuss, that is gone, it's a new thing. No, right? That is the bare metal. Okay, now that is the first floor, you can think, right? We will now build the second floor of it, right? First floor is the foundation of it, right? How we are going to do, because any application, whatever you are going to do, you need the user, and the user means there is user detail service is required, right? And for authentication method, you need an authentication manager, right? So whatever we are going to do,
we will use that authentication manager and user detail service, right? We'll construct that Spring Security using that web security config adapter, right? And we will configure the user detail service. We will configure the all other thing, password encoder. Then we will extract that authentication manager. That authentication manager I can give to someone who will now manage its OAuth 2.0 type of thing. But our learning in whatever we learn, that will come into work. Okay. Okay. Now, another thing is microservice. What is microservice? Everyone knows what is microservice. I'll not go into detail, but on a single thing, right? It's a small chunk of your, operation, right? And these microservice, it might be multiple time, right? So you are suppose assume that in a single, transaction, it is hitting 5 microservice in a row. That means first microservice will, do its part, then second microservice, third, fourth, fifth, right? These are the 5 rows, right? And every application needs to be authenticated, right? It should know that who are you, right? So how this whole mechanism will work, so that, you know we can make some standard, right? So then this OAuth 2.0 came into picture, and let's see what are the things. Before going to OAuth 2.0, we need to understand our own system first. And what do we mean by our own system first? Nowadays, how what is the means what is the strategy of the application? So you will not see in some old application, you will see that there is Spring MVC or anything, right? Where JSPB is being used, right? So one single layer of application, right? Inside the application there are MVC, model view controller. So model view controller inside the same code base, and there is a database, right? This usually don't, right, happen, because this was a very what should I say, that very haphazardly manner, because you can't, right, there are lots of problem. You might understand or you might know what the problem is. So now application is what type of thing, that there is a separate UI, right? This is a separate UI that might be, built on some new UI technology like React JS, right? Angular JS, or you can think of a VUE.js, right? And the backend, now we can think of a Java. Simple backend is Java, then the database layer is coming, right? So what UI component has to perform in this role, in this OAuth 2.0? UI component should be authenticated, or what UI component is what to us, right? And uh, what is the backend component role, right? What it will do, right? Based on the whole architecture and whole things, right? And assume that there is a database. Let me draw the database also. So assume that this is my database. Now let's take a simple example. Okay. Now let's take a simple example. Okay. Assume that your application, you are, working, or you are using a banking application. Okay. Whose UI is having React.js, backend is Java, and your account information, right, is being stored in the database. Okay. So assume that account information is your own resource. Okay, you are a account holder, so your own resource, own information is being held inside the database account info. Okay,
Now what are the component in OAuth 2.0 it interacts, right? First component is like, who is the resource owner? Who is the resource owner? You, right? Yes or no? Yes. Now uh, you want the your details, right? Your resource details or whatever the things should be displayed in the UI, right? So for that, what you are giving to UI, you are just going hitting the URL. After that, you are giving the username password. Whenever you are giving the username password, what you are trying to convey, you are trying to convey, here is my credential, right? I am giving you, you are telling that UI application ki I am giving you, use this and go to your backend, okay, and get the resource from me, get the resource for me, okay. Now then what we are calling that UI is a client, okay. What is a client now? Client is a component of OAuth 2.0 where user will use the client to get its own resource, okay. Now how client will do? Client can directly go to the resource and get it? No. Client need to first go with some security, who is holding the all responsibility of security, right? We can call it security, or we can call it a auth server, okay. Okay, now auth server is having all the details about the credential, okay. Auth server have all the details of the credential. That means auth server might have another table which is holding all the information about that user, all the user, okay. Okay. And based on that, auth server will check that okay, this is the credential, so let me give you something. So I'm giving you one token, okay. Next time whenever you will use this token to get the resource actually, okay. Now auth server will give the token to the client. Client, next what client will do? Client will now go to the Java backend, okay. Who is the resource server, right? Means who is managing the resource, okay. Now this Java backend is a resource server. What is its responsibility? It will see that you have a token, but let me talk to the auth server, you have a, this token is valid or not. So again it will go to the security auth server and check that if the security is this valid. If it is valid, then it will go to the account information and get the resource for you, and your account information will be displayed in the UI, okay. ये फ्लो क्लियर है? यस, नो? और एक बार बोलूं? Okay. Now what I was saying, that initially whenever you have a Spring MVC application, you can give your credential. Backend में आपका पास user का details होता था. So it will check that user, right? Either it will issue a token or it will give you the account information. Now in this world of microservice, in this world of this, right, this monolithic approach is gone. Means no one is going to use the monolithic approach, and the application is divided in two part. One part we call it the UI, right, and second part we call the Java backend, right. Now what I'm trying to say, assume that what are the entities involved in OAuth 2.0, right? You as a customer who will use the whole platform, you will be treated as customer, okay, and also the resource owner, okay. Resource owner means you have some information, you have some account information that is sit, in back of the some databases, right. So what you need to first do, you need to interact with the client, you need to give the credential to the client. Client is my UI application. Then UI application will go to the security auth server, right, where all my credential
right? All the things are, sit behind that auth server, right? It will call that auth server. Auth server will check the validation, then it will give you a token, right? Using that token, you will go to the Java backend or the resource server who is managing the resource, and that time it will just identify, okay, you are the, your token is valid, and you have, all the, so your role, everything will be that you are the actual owner of the resource. Then it will extract the resource and then it will give you. Okay, this is the whole flow. So every component has its own responsibility. No one component is have complete responsibility. Okay, now let's, I think it's clear now, right? Now let's see what are the name of this component, right? Let's go back to the slide. First is the resource owner. User is the owner of resource. User would have the username password. User provide credential to client who access resource on behalf of user. Clear है? No confusion, right? User, you are the user. पढ़ लो ये word ठीक से पढ़ लो. Okay. Now coming to the client. Client access the resource on behalf of user. Okay. Client access the resource on behalf of user, the UI screen or the Angular application. That is the client. Authorization server. Authorization server has centralized user details. When client want to access token, it first check the credential, then issue one token. ठीक है? Auth server, authorization server. This is a auth server. And the resource server, the component manages the resource. It always asks for token, and either it has the key to decrypt the token, or it can call check token or user endpoint of auth server to validate the token. Okay. Clearly mention what is responsibility. It's saying that it always need a token. Either it has a capability to validate the token by its own. There is some public key, private key relationship will be there. We will go into detail later. Or it will call to the auth server कि token की बारे में बताओ. Either get me all the user details of this token, or just give me that if it is valid or not, it is expired or not, right? Minimum information of the token. Okay, cool. These are the four responsibility. Okay. Everyone is fine. Samresh, Sanjali, Snehal. ठीक है. Now let's go this thing. What is the grant type? Anyone has any idea of what is the grant type? बताता हूँ मैं. I think this is a new. This might be the new thing. What is a grant type? Grant type means ये जो नया नया word सीखने को मिल रहा है, इसका grant type is one type of thing कि आप आपने क्या मैनरिज्म में या क्या मैकेनिज्म में आप पूरा सिक्योरिटी को मैनेज करना चाहते हो. ठीक है. आइदर कभी कभी कैसा होता है कि मैं जैसे चार सिनेरियो कल बोल रहा था. एक सिनेरियो है कि सिंपल सिनेरियो है. ठीक है. मैं लॉगिन करूँगा, मेरे को टोकन मिलेगा. ठीक है. मैं लॉगिन करूँगा, यूज़र नेम पासवर्ड दे के मेरे को टोकन मिलेगा. फिर आई विल यूज़ दैट टोकन टू गेट द जावा बैकएंड सर्वर, और मेरा जो भी इंफॉर्मेशन हो डेटाबेस में रखा है, राइट. दिस ग्रांट टाइप वी कैन कॉल इट एज अ पासवर्ड ग्रांट टाइप, क्योंकि मैं यूज़र नेम पासवर्ड दूंगा उसी हिसाब से मेरे को टोकन मिल रहा है. ठीक है. और दूसरा कुछ है नहीं. एक दूसरा वाला सिनेरियो ले लेते हैं जहाँ पे कोई यूज़र नेम नहीं है. इट्स अ जनरल पर्पस एप्लीकेशन, और एज्यूम दैट योर बैकएंड. ठीक है. बैकएंड मतलब एक एप्लीकेशन है, जो भी है आपका एक बैच प्रोसेस है जो ओवरनाइट रन होता है. उसमें कुछ यूज़र नेम पासवर्ड तो मैनेज नहीं होता है, बट इट नीड्स ए टोकन. रिसोर्स सर्वर बोल दे कि मेरे को भाई टोकन चाहिए, मैं टोकन छोड़ के कुछ नहीं देखता हूँ, आप सीधा एक्सेस नहीं कर सकते हो. तो उसके लिए ऑथ सर्वर को बोल दिया है कि उसमें भी एक मैकेनिज्म कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं क्लाइंट क्रेडेंशियल. ओके. क्लाइंट क्रेडेंशियल क्या होता है कि उसमें कोई यूज़र नेम पासवर्ड नहीं होता, सिर्फ क्लाइंट का डिटेल्स होता है. क्लाइंट ने अपना डिटेल्स दिया, उसको टोकन मिल गया, वो टोकन जाकर रिसोर्स सर्वर को दिखाएगा. वो रिसोर्स सर्वर से फिर डेटा निकाल सकते हैं, जो भी ऑपरेशन करना है कर सकते हैं. सो देयर विल बी नो यूज़र इज इन्वॉल्व इन द क्लाइंट क्रेडेंशियल grant type. It might be, there might be some purposeful application which is going to
right? Which is going to use this, right? Now coming to the authorization code. Authorization code is very interesting. Authorization code क्या होता है, मैं एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ. So just listen this word carefully, then you can explain me. आप लोग, मैं बहुत बार ये चीज़ बोल चुका हूँ कि आप कोई एप्लीकेशन में जाते हो तो कई कई एप्लीकेशन में ये मिलता है, क्या बोलते हैं, मतलब ऑप्शन मिलता है कि कैन यू वांट टू गो गो विद गूगल लॉगिन, मिलता है राइट. मतलब आप गूगल से लॉगिन करना चाहते हो, ये सुन, या फेसबुक या ट्विटर, कुछ ना कुछ तो मिलता होगा. लिंक्डइन में भी मिलता है. कैन एनी वन एक्सप्लेन मी द होल फ्लो हाउ इट हैपन. कैन एनी वन एक्सप्लेन मी क्या क्या आपको दिखता है स्क्रीन में. पहले आपने क्लिक किया, गूगल में क्लिक किया, उसके बाद कहाँ जाते हो आप क्या एप्लीकेशन की पेज में रहते हो कि आपको गूगल पेज में ट्रांसफ़र कर देता है. पहले आप यूज़र नेम पासवर्ड देते हो, उसके बाद यूज़र नेम पासवर्ड अगर वो गूगल को पता है तो वो नहीं, वो ले लेगा. आइदर इफ़ यू फ्रेश अगर स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट इट विल थ्रो यू ए यूज़र नेम एंड पासवर्ड स्क्रीन, राइट. आपने यूज़र नेम पासवर्ड दिया, फिर आपको क्या दिखेगा कि ये क्लाइंट ABC क्लाइंट वांट टू एक्सेस योर प्रोफाइल. यस, यू नीड टू ऑथोराइज इट, राइट. आपने ऑथोराइज कर दिया, उसके बाद क्या, सीधा आपको जिस एप्लीकेशन में आपने लॉगिन किया था उस एप्लीकेशन में देखता है, राइट. ओके. नाउ coming to the picture that how, what does it happen, how does it happen actually. तो जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि आपको आपको क्या होता है कि आप जब ऑथराइज कर देते हो तब ये एक टोकन मिल जाता है क्लाइंट को, राइट. बट क्लाइंट को टोकन कैसे मिलेगा, क्योंकि आपने गूगल में गया, गूगल में आपने दिया, फिर गूगल को तो पता होना चाहिए कि मैं मतलब मेरे को किधर भेजना है, राइट. नेक्स्ट टाइम जब आपको फॉरवर्ड करना है, वो किधर फॉरवर्ड करना है उसको पता होना चाहिए, राइट. ये सुनो, नहीं तो आप एप्लीकेशन में वापस कैसे आओगे, राइट. ऑल्सो व्हाट इट सेंड, गूगल क्या सेंड करता है उसको, सीधा टोकन दे देता है कि ये टोकन यूज़ करो. नो, टोकन नहीं देता है, वो देता है कोड देता है, ठीक है. एक एक कोड देता है जिसको बोलते हैं ऑथराइजेशन कोड. गूगल क्या कर सकता है, उस कोड को यूज़ करके फिर से, सॉरी, दूसरा एप्लीकेशन क्या करता है, जो एप्लीकेशन आप लॉगिन कर रहे हो, यू वांट टू लॉग इन, वो एप्लीकेशन वो कोड को यूज़ करके बैकएंड में गूगल का एक एंड पॉइंट को कॉल करते हैं, उस एंड पॉइंट से उसको टोकन मिलता है, ओके. फिर वो टोकन वो यूज़ करता है टू कॉल द रिसोर्स सर्वर, टू कॉल इट्स ओन रिसोर्स सर्वर, मतलब जो जहाँ पे जो भी छोटा छोटा माइक्रो सर्विस है उसमें कॉल करेगा. फिर वो रिसोर्स सर्वर, उसको तो पता नहीं टोकन का, उसको पता है कि मेरे को गूगल से करना है वैलिडेट, बट उसको टोकन की अंदर क्या है उसको तो पता नहीं, राइट. सो इट विल अगेन कॉल दैट गूगल फॉर दैट, ओके मेरे को इसका टोकन का डिटेल्स दो, टोकन में क्या अथॉरिटीज़ है, right. Then resource server will give all the information to that application so that it is being rendered in UI, ठीक है. Ultimately this grant type is called authorization code. Actually there is another grant type which I will cover. I think I forgot it to mention. That is implicit grant type. What is that? That is very simple. Instead of code, suppose you have in your organization, Google is the outside of your organization, but you might have similar scenario in your own organization जहाँ पे आपको गूगल में नहीं जाना है, आपका खुद का ऑथ सर्वर है, गूगल जैसा जो सर्वर मेंटेन करता है ऑथ सर्वर आपके पास है. तो उस केस में आपको क्या, कोड से नहीं जाना है, सीधा यू कैन गिव द टोकन, ठीक है. एंड कोड क्यों देते हैं, क्यों टोकन नहीं देता है, आई विल एक्सप्लेन दैट पार्ट ऑल्सो. देयर इज समथिंग, कुछ तो सोच के ये किया होगा. What is the point that it doesn't give the token direct, it first give the code and then it asks that okay I give you code, use that code and get the token from me.
why it is doing. There is some security concern is there. That's what it does. That will come later. But that is the authorization code grant type. But another grant type is implicit grant type. What does it do in the implicit grant type? Instead of code, it can directly give you the token. Okay. Refresh token, I'll come later because I think it's too much now. Right? Now what we are going to understand, we are going to understand each grant type separately and we will implement the project using the grant type. Okay, एक एक grant type. Let's first focus on the password one. Simple and which is very relevant. ठीक है, before that any question? Yes, any question? No question? यस नो, अरे बोलो, कुछ तो बोलो भाई, आगे चलो। ठीक है, दिस इज द पासवर्ड ग्रांट टाइप। ठीक से देखो पिक्चर में क्या लिखा है। लेट मी टेक ए लुक व्हाट इज द फ्लो, लेट मी मेक इट लार्ज। दिख रहा है ना बड़ा स्क्रीन में? It is visible, right? Yes or no? Okay. Now let's see what are the things. I just explain you. This is the depiction of that picture. User, I want my access my account. Here is my credential. It is asking client. Simple एक web application. Client को आप बोलते हो. Client क्या बोलेगा? User want to access her account. Here her credential. ठीक है. सब जगह हिस लिखते हैं, मैंने यहाँ पे हार लिख दिया, चलो सही है। सो आई प्रेफर्ड वहाँ पे इग्नोर कर देते हैं बिकॉज एम्प्लॉय माइट बी द फीमेल ऑल्सो, सो दैट्स व्हाट। सो यूजर वांट टू एक्सेस आवर अकाउंट, हियर आर हर credential. Okay, client is reaching to auth server. What auth server will do? Okay, the credential are current, here is your token, here is a token to access her account. Okay, client को token दे दिया। Now what client will do? I need user account. Here is the token from authorization server. Resource server, perfect. Here is your user account. Done. Any problem? No, 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 no. Don't think about Google now, please. Don't think about Google. Simple आपका एक एप्लीकेशन है, ऑथ सर्वर को कैसे इंप्लीमेंट करते हो, वी विल डू द थिंग्स। ओके, गूगल में भी बच जाओ, दैट इज ऑथराइजेशन कोड वाला चीज़ है। पासवर्ड में सिंपल सोचो, ऑथ सर्वर है जहाँ पे तुम्हारा ऑथ सर्वर इज एज्यूम दैट आपका एक स्प्रिंग सिक्योरिटी का यूज़ करके आपने एक सर्वर बनाया जहाँ पे सारे यूज़र डिटेल, सारे पासवर्ड इनकोडर, सारे यूज़र डिटेल सर्विस, सारे ऑथेंटिकेशन मैनेजर इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, जिस तरीके से हम ओ में एक टोकन दिया था, इस तरीके कुछ प्रोसेस होगा, माइट बी समथिंग डिफरेंट, बट इसी टाइप ऑफ एक आपका एप्लीकेशन है ऑथ सर्वर इज। ओके, जहाँ पे आप यूज़र नेम पासवर्ड दोगे तो इट विल गिव यू अ टोकन। ओके, now resource server, what it has to do, it will just use the token to validate, either it has a capability to get the information or it will call the auth server to get the information from the token. Then if it is a valid, it will send you that okay, here is your user account. Okay, now एक बार ठीक से सोच लो क्योंकि ये फ्लो याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। whenever you are going to write implement something, right, when you talk to your organization or anyone, you need to just use that okay, I'll implement the password grant type, that means the ये flow हम implement करेंगे, वहाँ पे जाके कुछ compromise नहीं करना है। okay, ठीक है। सो नाउ विल गो नेक्स्ट लेवल। अभी बताओ थोड़ा बहुत फ्लो क्लियर है?
Don't think too much, just focus on this. We will go each and every part of it and you will understand. Eventually you will understand everything, right? Spring मतलब OAuth 2.0 में जो है सब कुछ आपको समझ में आएगा. But let's focus one by one, right? Don't think too much about that यहाँ पे Google कैसे आ गया, क्या कैसे आ गया. That was the example. I'll go in detail into that. Okay. Okay. Okay, before going that, I will not go into next slide, because it is having, if you can see, this is a refresh token grant type, authorization code grant type, यही flow है, client credential grant type, right? Before that, I will do what I'll do. I'll just focus on this password and let's do some coding. ठीक है. कोडिंग में हम क्या करेंगे, हमारा पर्पस होगा कि हमको एक ऑथ सर्वर इम्प्लीमेंट करना है. ओके. What auth server should maintain? Can anyone tell me what auth server should maintain? एक तो यूजर डिटेल्स इट शुड हैव, राइट? ऑल द यूजर डिटेल्स, कौन लॉगिन कर रहा है, क्या कर रहा है. यस. ऑथेंटिकेशन मैनेजर, हाँ ठीक है. that is one thing. Authentication manager, that is the user detail service. And I'm trying to say that what information it should know, not the process. Information means one is like the user का सारे information उसको चाहिए. Yes. दूसरा क्या चाहिए, उसको कौन कॉल कर रहा है. तो क्लाइंट का भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना. कोई भी क्लाइंट जाकर अगर कॉल कर देगा उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, राइट? तो क्लाइंट का भी तो कुछ वैलिडेशन, नहीं तो तुम्हारा सिक्योरिटी पूरा ब्रीच हो गया. कोई भी एप्लीकेशन जाएगा यूजर नेम पासवर्ड लेके, तो आप तो उसको दे दोगे, नहीं. मैंने क्या किया, आपने ओके, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. एसबीआई लॉगिन करते हो ना. ओके. एसबीआई का यूआई अलग होगा, जो भी होगा. अच्छा, मैं एक एसबीआई का सेम चीज़ बना सकता हूँ, राइट? सेम साइट बना सकता हूँ, एकदम लुकिंग में एकदम सेम है. ठीक है. उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने जस्ट यूआरएल को भी थोड़ा 1 2 3 ये कर दिया कि यूज़र ने नोटिस नहीं किया. यूज़र एसबीआई ऑनलाइन सर्च किया, मेरा गूगल सर्च में पहला दिखा, यूज़र गया उधर, उसने यूज़र नेम पासवर्ड दिया अपना. एंड आई नो द एज्यूम दैट सम हाउ आई नो द ओनली एसबीआई का जो ऑथ सर्वर है उसका यूआरएल मेरे को पता है सम हाउ. तो मैं तो सीधा तुम्हारा एज ए क्लाइंट, राइट, आई कैन यू नो do anything, whatever I want to do, right? Yes or no? So auth सर्वर के पास क्लाइंट का भी डिटेल्स होना चाहिए, राइट? एंड ओनली अप्रूव क्लाइंट शुड, राइट, रीच टू auth server, then it will issue the token. Yes, most secure. Everyone agree? Okay, great. Let's start then. Okay, sorry. Okay. So what we are going to do now, we are going to implement the auth server, and we will try to चेक द टोकन कि मैं अगर तुमको, तो ऑथ सर्वर से मेरे को टोकन मिलने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसमें एक है कि क्लाइंट का इंफॉर्मेशन मेरे को देना पड़ेगा, और दूसरा है कि यूज़र का इंफॉर्मेशन, राइट, व्हाट क्लाइंट कैप्चर. ये दोनों इंफॉर्मेशन लेने के बाद आई विल, राइट, रीच टू ऑथ सर्वर एंड टेल कि भाई तुम मेरे को एक टोकन दो. ठीक है. देखते हैं कि टोकन कैसे देते हैं.
उसके बाद हम उस टोकन को वैलिडेट करेंगे कि उस टोकन की अगर मैं टोकन देके कॉल करता हूँ तो वो वैलिडेट कर पाता है कि नहीं, राइट. दिस इज माई कोर फंक्शनलिटी ऑफ ऑथ सर्वर फॉर पासवर्ड ग्रांट टाइप. ओके, राइट. एग्री कि नहीं? दूसरा कुछ? You can work with me, you can code with me. Spring will be the first one. Second is Spring Security. ठीक है, अभी हम डेटाबेस हम इन मेमोरी लेंगे, राइट. वी विल नॉट यूज द डेटाबेस, दैट इज अनदर कॉम्प्लेक्सिटी, बट यू गाइस अंडरस्टैंड, राइट, कि अगर इन मेमोरी से डेटाबेस में अगर करना है तो कैसे करना है, बहुत इजीली हम कर सकते हैं जो यूज़र का डिटेल्स रखेंगे, राइट. तो अभी सिंपल करते हैं. एंड अभी हमने ओऑथ का कुछ डिपेंडेंसी नहीं लिया, वो हम बाद में ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे मिलता नहीं ओऑथ का डिपेंडेंसी. वी विल ऐड इट लेटर. ठीक है. ओके, let me add the module here. ठीक है, इसको बिल्ड करते हैं. देन वी विल सी व्हाट आर द डिपेंडेंसी आई एम टॉकिंग अबाउट जो हमको ऐड करना है बाद में. आई जस्ट पिंग यू, यू कैन ऐड द डिपेंडेंसी देयर. दिस इज द डिपेंडेंसी. ठीक है. ठीक है. स्प्रिंग सिक्योरिटी वॉच टू. ओके, लेट्स स्टार्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू. ठीक है, पहले कॉन्फ़िगरेशन करते हैं. सो आई विल क्रिएट वन पैकेज. दिस इज द कॉन्फ़िग पैकेज. ठीक है. कॉन्फ़िग पैकेज के अंदर क्या रहेगा? पहले एक जावा क्लास होगा, उसमें हम क्या करेंगे? वेब सिक्योरिटी. ओके, पहले वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िग करते हैं. इट शुड एक्सटेंड. सॉरी, ये मैं पिंग कर देता हूँ. यू माइट नॉट गेट दिस. यू आर कोडिंग विथ मी, राइट, और नो? ठीक है.
देखो मिला कि नहीं, एक बार देख लो। नोटपैड PW। मिला? ये लिंक चाहिए क्या किसी को? नहीं आया। वेब सिक्योरिटी configure adapter, right? What we are going to do, we are going to configure, sorry, protected method, protected और filter HTTP और एक है protected। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत ही सिंपल जैसे दिखाया था, और एग्जैक्टली इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन डॉट विथ यूज़र, यहाँ पे यूज़र नेम देते हैं रातू, तुम्हारा ही नाम देते हैं, डॉट पासवर्ड 12345 dot authorities read. Okay, then what I'm going to do here, sorry, I'll create a bin, public password encoder, no password encoder देते हैं, so there will be nothing. No password encoder dot get instance. ये जान मतलब पहचाना हुआ लग रहा है ना? कहीं पे भी डाल सकते हो, कहीं पे भी डाल सकते हो, इधर ही डाल देते हैं इसको, बिन @ इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन दोगे तो बिन इधर ही बनेगा। बट ये अलग कोई एक सिक्योरिटी क्लास मतलब अलग बीन क्लास बना के भी डाल सकते हैं, ठीक है? Everyone is fine, and what you need to do, because there will be lots of post requests right in this, तो हम http डॉट csrf को डिसेबल करके रखते हैं, डिसेबल करके रखते हैं, ठीक है? अभी और क्या करना है? और कुछ नहीं करना है। मैं ये कोड को Ctrl+C Ctrl+V, लाइव कोडिंग का एक मज़ा है ना, मतलब मैंने देखा है बहुत सारे ट्रेनिंग में क्या होता है, अपना कोड करके लेके आते हैं, फिर उसी को एक्सप्लेन कर, किसी को समझ में नहीं आता क्या कर दे। लाइव कोडिंग में एक चीज़ है कि यू कैन इंटरेक्ट, राइट? बट कभी कभी फंस जाते हैं, बट ठीक है, चलेगा। लेट मी नो वंस यू आर डन, राइट? मैं पेस्ट कर दिया। अच्छा, दो चीज़ और ऐड कर देता हूँ, नहीं तो बाद में इस क्लास में और आना नहीं पड़ेगा। अच्छा, मैं अभी से ऐड करता हूँ। हमको ऑथेंटिकेशन मैनेजर को रिलीज़ करना है यहाँ से, राइट? ये ऑथेंटिकेशन मैनेजर चाहिए हमको, राइट? आई टोल्ड यू, सो समहाउ आई नीड दिस। जैसे वहाँ पे चाहिए था फिल्टर यूज़ करेगा, इधर जो हमारा ऑथ सर्वर है मतलब ऑथराइजेशन प्रोसेस है उसमें यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, आई विल गो, ओके?
This is the first floor. Let me know when you are done. Done. Okay, when everyone done, let me know. Okay, Snehal, Samres, you can proceed. Camera. Okay, okay, Snehal done. Okay, ठीक है. अभी हमको क्या करना है, अभी देखो थोड़ा मैजिक देखो. अभी मैंने क्या बोला था कि जस्ट फर्स्ट फ्लोर हमने बनाया, अभी हमको सेकेंड फ्लोर बनाना है. सेकेंड फ्लोर बनाने के लिए स्प्रिंग आपको हेल्प करता है कि आप ऑथ सर्वर को भी बनाने के लिए एक कॉन्फ़िगर एडाप्टर देते हैं. Okay, so that you will actually create the auth server. Okay, so I will just name it auth server config. auth server config में extend authorization server configure adapter, similar type of thing. इसमें भी दो मेथड होते हैं, कॉन्फ़िगर करके दो मेथड होते हैं. Not security clients.
ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ देखो, यहाँ पे आप क्या सेट कर सकते हो, क्या लिखा है, हुँ? क्या लिखा है इधर? क्लाइंट, क्लाइंट सेट कर सकते हो। क्लाइंट इज लाइक क्या, यूजर डिटेल्स जैसा है क्लाइंट डिटेल्स, right? So there is a client detail service. Client, let me walk through with, let me make you remember all the things. I while not go into too much details because you already know the idea behind this, because हमने यूज़र डिटेल्स सर्विस जो भी है इसमें हमने बहुत मेहनत बहुत टाइम स्पेंड किया। सेम थिंग जैसे एक होता है क्लाइंट डिटेल्स, क्लाइंट डिटेल्स में आप क्या रखते हो, यूज़र डिटेल्स जैसा होता है क्लाइंट डिटेल्स होता है, क्लाइंट डिटेल्स में आप क्या रखते हो, राइट? गेट द क्लाइंट आईडी, गेट रिसोर्स आईडीज, क्या क्या रिसोर्स को एक्सेस करना है, राइट? गेट ऑथराइजेशन ग्रांट टाइप, राइट? गेट स्कोप, गेट ऑथोरिटीज, राइट? मतलब व्हाट आई वांट टू से, क्लाइंट के पास एक क्लाइंट जो होता है उसके, क्लाइंट इज माई एप्लीकेशन, राइट? जावा जो सॉरी जो एंगुलर एप्लीकेशन है, तो उसमें क्या क्या रहेगा, एक रहेगा क्लाइंट आईडी चाहिए और क्लाइंट सीक्रेट चाहिए। क्लाइंट आईडी इज माई आईडी, क्लाइंट सीक्रेट इज माई पासवर्ड, एंड थर्ड इज स्कोप, राइट? हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल क्लाइंट आए, वो लोग सेम स्कोप में काम नहीं, आपके मोबाइल क्लाइंट है, वेब क्लाइंट है, राइट? सो देयर माइट बी स्कोप, स्कोप के हिसाब से उसका टोकन बनेगा। मतलब समझ लो कि आपको मल्टीपल एप्लीकेशन को एक एक ही क्लाइंट आईडी देना है, बट their scope will be different, or there will be one level of bifurcation between these two, that is the scope। ठीक है, तो इस स्कोप को ये स्कोप को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, राइट? सो व्हाट आर द स्कोप इज अवेलेबल फॉर दैट क्लाइंट, वेब क्लाइंट है, मोबाइल क्लाइंट है, राइट? दिस टाइप ऑफ थिंग्स, सो यू कैन कॉन्फ़िगर द स्कोप। नेक्स्ट इज ऑथराइज ग्रांट टाइप। ये क्लाइंट के लिए ऑथराइज ग्रांट टाइप क्या है, what are the authorized grant type, password, authorization code, implicit grant type, and what are the client credential or refresh token, okay, good. Then what are the, for this client what are the token validity second, you can configure it। आपको इस client के लिए जब token generate होगा तब आपको 15 मिनट चाहिए, कितना टाइम चाहिए, 15 मिनट के लिए टोकन चाहिए। और उसके बाद एक देखो रिफ्रेश टोकन वैलिडिटी भी है, रिफ्रेश टोकन हम बाद में आते हैं। इज ऑटो अप्रूव, ये ऑटो अप्रूव है कि नहीं। उसके बाद एक होता है गेट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इफ यू वांट टू गिव सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन दैट टोकन, राइट, यू कैन गिव इट, okay। So these are the client details, this is the interface, okay। Now all this information is equivalent to user details, and all this information will be stored in a client detail service which will give all the client, ठीक है। you want to know more, or I think ये similar है, user details जैसे client details है। do you want more clarification, और हम यहाँ पे in memory setting कर देते हैं, चलेगा? everyone agree? काफ़ी सिमिलर है, डोंट गेट कंफ्यूज। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमको क्लाइंट्स डॉट, ये क्लाइंट सॉरी स्मॉल सी, क्लाइंट्स डॉट इन मेमोरी, इसके बाद मैं क्या सेटिंग करूँगा, इन मेमोरी के बाद विथ क्लाइंट। समझ लो मैं क्लाइंट आईडी देता हूँ जिसका नाम है ऐप 1, ठीक है, ओके। उसको एक सीक्रेट देता हूँ, सीक्रेट में देता हूँ sec1, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूँ स्कोप, सॉरी ऑथराइज ग्रांट टाइप, ठीक है। अभी मैं लिखता हूँ पासवर्ड डॉट स्कोप, स्कोप में लिखता हूँ assume that वेब क्लाइंट। उसके बाद कुछ नहीं, अभी के लिए सिर्फ यही सही है। और एक एक्सेस टोकन वैलिडिटी इन सेकेंड कर देते हैं, सेकेंड में 300 सेकेंड, दैट मीन्स 15 मिनट। टोकन अनलिमिटेड वैलिडिटी नहीं है। रिफ्रेश टोकन का अभी तक बात आया नहीं, तो रिफ्रेश टोकन आएंगे, बाकी और सेटअप करेंगे। रिसोर्स आईडीज क्या क्या ये सब अभी छोड़ते हैं।
ठीक है, गुड। दैट मीन्स हमने ऑथ सर्वर में क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर दिया विथ ऐप वन, सीक्रेट वन, ऑथराइज्ड टाइप क्लाइंट टाइप, स्कोप वेब क्लाइंट, ओके, एंड एक्सेस टोकन वैलिडिटी सेकेंड इज 15 मिनट्स, दैट मीन्स 300 सेकेंड। डन 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 हो गया। मेरा इधर क्लाइंट कन्फिग हो गया। अभी लेट्स कम हियर, what are the endpoints? Endpoints is the thing where we will connect the my web security config का जो authentication manager है और जो auth service यूज़ करेगा endpoint, यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे। दिस इज माई सेकेंड फ्लोर, दिस इज माई एक्चुअली स्टेयर between first floor and second floor, okay? What I will do, endpoint dot authentication manager, क्योंकि हमको authentication manager चाहिए। authentication manager कहाँ से मिलेगा? यहाँ पर authentication manager का बीन है, राइट? यहाँ पे ऑटो एयर कर दिया। और कुछ है यहाँ पे जो हमको कॉन्फ़िगर करना है अभी के लिए? टोकन स्टोर, यूज़र डिटेल सर्विस, टोकन स्टोर, एक्सेस टोकन नहीं, अभी बाद में सब एक एक करके करेंगे, बट आई थिंक फॉर द फर्स्ट इंस्टेंस दिस इज काफ़ी। ऑटोवेयर, सॉरी ऑटोवेयर की कॉन्फ़िगरेशन, you can implement your own details of each and everything, client details, right? Client uh, detail service, right? Everything you can implement and you can use these client details। ये देखो इधर मैंने, now yeah you can take this code, बट यहाँ पे आप अगर चाहते हो clients डॉट, आप एक क्लाइंट सर्विस लिखो, उसको सब डेटाबेस से लेके एक सर्विस लिखो, यहाँ पे यू कैन यू नो डू द विथ क्लाइंट डिटेल्स। देखो यहाँ पे आप क्लाइंट डिटेल्स यूज़ कर सकते हो, इसका आपको JDBC यूज़ करना है आप कर सकते हो, राइट? एंड आई थिंक लॉट्स ऑफ थिंग कॉन्फ़िगर में आप यू कैन डू वॉट एवर यू वांट टू डू, राइट? सारे क्लाइंट डिटेल्स यहाँ पे कर सकते हो। So you can also keep your client information in database very easily, right? That you can try by your own, but अभी के लिए in memory करते हैं। ये जब हो गया तब बताना। One, the last thing what I need to do, I need to enable authorization server, so that मैं enable authorization server कर दिया तो ये जो application है जो authorization server काम करेगा, else it will not use this configuration class and everything, okay? So this is the last thing. Once you are done, then we will, right, go with the demos कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। Done.
let me know. Okay, so everything is fine. Configuration endpoint सब सही है, सब सही है. Manager. आई डोंट थिंक अभी यूज़र डिटेल सर्विस इसको चाहिए, क्योंकि ऑथेंटिकेशन मैनेजर में यूज़र डिटेल सर्विस चाहिए होता है, राइट, बट नीड टू टेक ए लुक. शायद अभी नहीं चाहिए, देख लेते हैं. सो मेरा सर्वर पोर्ट में 30,004 पोर्ट में चल रहा है. एंड व्हाट आई नीड टू डू नेक्स्ट, पोस्ट को मैंने ये कर दिया, तो ठीक है. सबका हो गया तो बोलना, आई जस्ट रन इट एंड विल ट्राई टू टेक ए लुक व्हाट इज द प्रॉब्लम. डन, ग्रेट. अभी इसको रन करते हैं. आई एम कंसिडरिंग दैट एवरीवन इज डन. नहीं भी है तो थोड़ा बहुत चालू इसको रन करते हैं. अच्छा, इसका एंड पॉइंट क्या हिट करना है? अभी मेरा पर्पस क्या है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द पर्पस? एक टोकन इशू करना है विथ प्रॉपर, आई विल गिव द क्लाइंट इंफॉर्मेशन एंड या बोलो. यही प्रॉब्लम है ये. आई नो, ये ना मतलब जावा ना सबका जॉब खाएगा लग रहा है. जावा 11 सेट किया ना, इसीलिए ये जैक्स भी उसके अंदर नहीं रहते हैं. सो आई नीड टू, व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू यूज द जैक्स भी. जैक्स भी मेरे को कहाँ मिलेगा? ये पता है क्या, पहले एक्चुअली ये जैक्स भी का ये क्लास पाथ में था. अभी जावा 8 में अगर करोगे, रन करोगे तो इट विल नॉट हैविंग एनी इशू, बट जावा 9 या ऊपर रन करोगे तो इट विल गिव यू दैट ये एक्सेप्शन. इसके लिए आपको 2 जैक्स भी का डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ता है. सो जावा 8 के नीचे अगर करोगे तो यू विल नॉट फेस एनी चैलेंजेस, बट जावा 8 के ऊपर करोगे तो इट विल फेस चैलेंज. मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ. Let's see if it works or not. चलो, okay. If you go to the log, it will say you something. These are the endpoint available. Auth token, auth check token. ठीक है, हमको अभी के लिए ये दोनों ही सही है, राइट, और कुछ नहीं चाहिए. मेरे को एक टोकन दो और मैं चेक कर सकता हूँ टोकन क्या है. ओके, गुड, गुड टू गो. सो विदाउट डूइंग एनीथिंग, जस्ट आपने enable ऑथोराइजेशन सर्वर एंड ऑथोराइजेशन सर्वर कॉन्फ़िग का अडाप्टर देने के बाद आपके पास ये एंड पॉइंट ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा. यू नीड टू नो, कुछ नहीं करना है सिर्फ ऑथ टोकन, इट विल बी द पोस्ट मेथड. ओके, यहाँ पे ध्यान से देखना कहाँ पे आपको क्लाइंट डिटेल्स देना है और कहाँ पे आपको यूज़र डिटेल्स देना है. ओके, because there are two type of authentication we are talking about. Now client details is we need to give in the authorization. Okay,
the basic auth, we need to give the client details. What is that client details? App1 and sec1. Okay, this is the basic security it is having, client details. Okay, and body में आपको from में देना है, from data. Grant type should be password, username should be Ratul. Okay, password should be 12345, scope should be web client. Okay, ठीक है. I'll just click it and let's see if it is giving something. If it is not giving, then I can, अरे यार मैं पोर्ट ही गलत दे दिया था, 3004 4003 दे दिया. If it is giving me, then it is fine. I'll give you the time to write this thing and test it. Else you need to take a look कि क्या what goes wrong. Okay, क्या बात है, आ गया. ट्राई करके देखो अपना अपना सिस्टम में. जब टोकन मिल गया बोलना मेरे को. Let me know whenever done. Getting the token. मिला.
क्लाइंट ऑथेंटिकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यूज़र के साथ साथ अगर मैं कोई भी क्लाइंट को एक्सेस दे दिया, क्लाइंट इज समझ लो यूआई एप्लीकेशन, द एग्जांपल वाज गिविंग दैट, समझ लो कि एसबीआई का एक वेबसाइट है, ठीक है, और एसबीआई का ऑथ सर्वर आपको पता है, एज्यूम दैट, राइट, आपने क्या किया, आपने एक यूआई बनाया एकदम एसबीआई जैसा देखने के लिए, मतलब सेम टू सेम आप बना सकते हो, राइट, उसका जेएसएस सीएसएस जावास्क्रिप्ट कॉपी करके बना सकते हो, राइट। उसके बाद आपने एक डोमेन भी खरीद लिया, थोड़ा सिमिलर एक दो वर्ड चेंज करने के बाद आपको मिल गया, आपने उस डोमेन से सर्विस को हिट कर दिया। तो उसके बाद आप तो आपको यूज़र नेम पासवर्ड, सो अभी मैं क्लाइंट हूँ, मैंने एस बी आई सर्च किया तो आपका डोमेन मेरे को दिखा रहा है, तो मैंने क्लिक किया, मैंने यूज़र नेम पासवर्ड दे दिया अपने ऑथराइजेशन टोकन में, आप आपने ऑथेंटिकेट ऑथ सर्वर को कॉल किया, बिकॉज मैं क्लाइंट हूँ, मैं तो सही यूज़र नेम पासवर्ड दूंगा, वो देख के आप क्या करोगे, आप ऑथ सर्वर को कॉल किया, आपको टोकन मिल गया, आप वहाँ से कुछ भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, राइट, यूजिंग दैट टोकन, क्लाइंट कैन डू एनीथिंग, राइट। उसको रोकने के लिए प्रोसेस है कि आप जो ऐप जो क्लाइंट ऑथ सर्वर को एक्सेस करेंगे उसको भी पहले ऐप ऑथ सर्वर में रजिस्टर कराओ एंड आस्क क्लाइंट कि तुमको इसी यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ करना है तुम्हारे लिए, नॉट यूज़र के लिए। Exactly. This is the thing. App one sec one. Exactly. But it will not have this app one sec one, right? वो कैसे मिलेगा? हम्म क्लाइंट के थ्रू करता है मतलब? हम्म 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 ओके। हम्म नहीं नहीं, अरे ऐसा नहीं होता है ना, मतलब आपका जो एपजेस होता है, राइट, आप तो कहीं पे उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, मतलब वो, सी, द थिंग इज लाइक, कैन यू रीच टू द सर्वर? यू कैन रीच द सर्वर, यू कैन रेंडर इट। मैं यहाँ से फॉरवर्ड किया, बट ऐप क्या करेगा, ऐप ऐप अगर समझ लो कि मैंने SBI.com किया और मेरे को कोई, तुम बोल रहे हो कि दूसरा एक साइट बने, वहां से तुम क्या करोगे, रेस्ट कॉल करोगे? नहीं कर सकते ना, रेस्ट कॉल कैसे करोगे तुम, ये तो एंगुलर जैसे एप्लीकेशन है, इसको तुम रेस्ट कॉल कैसे करोगे? ये थोड़ी तुमको एक एंड पॉइंट दिया है। Client is what? You can't go via client. Client user can interact client. One client cannot interact to another client. वो कैसे पॉसिबल है? वो तो पॉसिबल है ही नहीं। और अगर तुम्हारा जो भी क्लाइंट है, जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन है, उसके पीछे इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट डू द सर्वर साइड थिंग, कि वो सर्वर साइड में सिर्फ, और उस सर्वर साइड की सिक्योरिटी में ऐप वन से एक वन रहेगा डेटा, राइट, सो मतलब वो क्लाइंट ही सिर्फ एक्सेस कर सकता है, ओके। नहीं होगा, मतलब आप क्लाइंट टू क्लाइंट कैसे कॉल करोगे? मैं आप कर सकते हो, ऐसा नहीं, कर नहीं सकते, बट उसकी इंफॉर्मेशन आप फॉर्ज नहीं कर सकते हो। यू कैन जस्ट यूजिंग आई फ्रेम, कि मैं एक ब्राउज़र से दूसरा ब्राउज़र का इंफॉर्मेशन दिखा सकता हूँ, मतलब एक, सॉरी, वेब पेज का इंफॉर्मेशन दिखा सकता हूँ, बट यू कांट गेट द इनसाइट इंफॉर्मेशन ऑफ दैट क्लाइंट। जो ऐप वन से कौन आपको मिलेगा कैसे, क्लाइंट के थ्रू, समझ रहे हो? एंड आप अगर रिडायरेक्ट करते हो, बट आपने रिडायरेक्ट करके चला गया, बट वहाँ से आपका जो फॉर सेट वहाँ पे तो आ नहीं सकता ना, उसको रिडायरेक्ट करने के लिए आपको इसको सेटिंग करना पड़ता है, कि ये क्लाइंट आपको कुछ ऑपरेशन करने के बाद रिडायरेक्ट करेगा, ये थोड़ी अलाउ करेगा एसबीआई के यूआई की आपको रिडायरेक्ट कर सकते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट फ्रॉम ए ऑथ सर्वर, हाँ, जस्ट अ ऑथ सर्वर, आई नीड ए वैलिड क्लाइंट डिटेल्स,
मैं यूज़र डिटेल्स तो ठीक है, बट मेरे को एक वैलिड क्लाइंट डिटेल्स भी चाहिए, मैं नहीं तो उसको कुछ नहीं दूंगा। एवरीवन क्लियर? यस नो चलेगा? क्या बोल रहे, क्या बोलते हो? श्योर। ग्रैंड टाइप पासवर्ड, यूजर नेम, पासवर्ड एंड स्कोप। यही देना है, ठीक है, दूसरा कुछ नहीं। Sorry, let me copy that. ठीक है। If you're done, everyone got the token or not? ठीक है, फिर रिसोर्स सर्वर में जाओ। रिसोर्स सर्वर से मतलब एटलीस्ट वो टोकन को यूज़ कर सकते हैं ना। चेक टोकन चलाते हैं अभी, चला है क्या? what check token, this check token will be get endpoint, ठीक है। और इसमें हमको क्या देना है? सॉरी नॉट गेट endpoint, आई थिंक पोस्ट endpoint ही होगा। लेट मी टेक ए लुक, गेट है कि पोस्ट है? क्या हुआ, कोई डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? चेक टोकन, यस ठीक है। पोस्ट endpoint ही होगा। मेरे को याद नहीं आ रहा है, प्रोबेबली पोस्ट endpoint होगा, करके देखते हैं। I'll use this token, ठीक है। अभी इसको नो ऑथ देते हैं। क्या दिया? 401, what does it mean? Can anyone tell me what is the 401? Why it is giving 401? हाँ, क्यों अनऑथोराइज बोल रहे हैं? क्योंकि मैंने ऐप से ऑथराइज टोकन जाने के लिए मैंने रजिस्टर कराया, बट मैंने कहीं पे ये नहीं बोला कि कोई भी आके क्या चेक टोकन कर सकता है। मैंने ये ऑथ सर्वर को बोला कहीं पे कि भाई तुम किसी को भी छोड़ दो, वो टोकन लेकर आएगा तो चेक करा देना। अगेन सिक्योरिटी कंप्रोमाइज, अगर ऐसा कर देंगे तो कोई भी जाकर टोकन को चेक कर सकता है, राइट? यस और नो? सो अब हमको क्या करना पड़ेगा अगर ऐसा करना है? सो आई नीड टू टेल एक्सप्लिसिटली ऑथ सर्वर किसी को भी आने दो, ठीक है। तो हमको दूसरा एक मेथड को करना है, ये ठीक से देखो क्या कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे हमको सिक्योरिटी में बोलना है सिक्योरिटी डॉट चेक टोकन एक्सेस, ओके। मैं यहाँ पे हाइफन में देखूँगा कि परमिट ऑल। मेरे को एग्जैक्टली बोलना पड़ता है कि तुम सबको परमिट करो, ओके। नहीं तो वो किसी को परमिट नहीं करेगा।
मतलब जो भी चाहिए, मतलब किसी को परमिट नहीं करेगा, वो ऑथेंटिकेशन के लिए वेट करता रहेगा। एंड ऑथेंटिकेशन कैसे करूँ? सो देयर आर टू टू वे टू डू इट। मैं धीरे धीरे बताता हूँ क्या क्या वे है। पहले परमिट ऑल करते हैं। परमिट ऑल मतलब सबको चेक एक्सेस टोकन के लिए सबको एक्सेस दे दिया मैंने, ठीक है। ऑथ सर्वर इज अ वेरी हाईली सिक्योर्ड जोन। ऑथ सर्वर से कोई तुम इंफॉर्मेशन निकाल नहीं सकते अनटिल अनटिल यू आर ऑथराइज टू डू इट, ठीक है। अगर करना है तो आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ेगा। एंड वो बहुत ही सिक्योरली वे से दो एंड पॉइंट को एक्सपोज करते हैं। कहीं पे भी सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है, ओके। सो ईच एंड एवरी स्टेप इट हैज़ इट्स ओन, यू नो, वे टू डू द थिंग्स। ओके, अभी मेरे को फिर से टोकन चाहिए। क्यों टोकन चाहिए मैं बाद में बताता हूँ कि टोकन एक्चुअली जब वो बनाता है टोकन वो स्टोर करके नहीं रखता है, इन मेमोरी रहता है। तो मैं एक बार इसको रन कर दिया तो वो तो टोकन चला गया। अभी फिर से मेरे को एक नया टोकन चाहिए। एंड और उसको आप स्टोर भी कर सकते हो। आई गो वन बाय वन, ओके। लेट्स सी क्या क्या लिखा है, देखो। जस्ट आई विल एक्सपांड इट। व्हाट इट इज सेइंग, इट इज एक्टिव, यस। एक्सपायरी कब होगा ये एक टाइम स्टैम्प को क्या फॉर्मेट में बोलते हैं उसी फॉर्मेट में दिखाया, लॉन्ग फॉर्मेट में। यूजर नेम क्या है? रातुल। इसके पास ऑथोरिटीज है रीड। क्लाइंट आईडी कहाँ से आया था? ऐप वन। स्कोप है वेब क्लाइंट। एवरी इंफॉर्मेशन related to this token has been given to you। बढ़िया। ठीक है, अभी मैं ये कोड आपको दे देता हूँ। यू कैन जस्ट ऐड दिस कोड, एवरीथिंग विल बी फाइन। ये चीज़ ऐड कर दो। Okay, if but this is not the right way to do. Again, I'm telling you, don't add this. I'll just for the example I'm giving, this is not the right way to do. Why it is not the right way? आप किसी को भी चेक टोकन का एक्सेस नहीं दे सकते, राइट? यू नीड टू समहाउ कॉन्फ़िगर इट कि आप कुछ तो एक तो उस पर यूजर नेम पासवर्ड दो जिससे वो आएगा, राइट? यस, वी कैन डू इट। कैसे करेंगे? कुछ नहीं, सिंपल आप एक इसमें एंड ऐड करो, ठीक है। डॉट नॉट कॉन्फ़िगर एंड विथ क्लाइंट। आप यहाँ पे ना सिंपल लिख दे दो रिसोर्स सर्वर को रिसोर्स एंड सीक्रेट, ये CCRET। कुछ नहीं करना है। और ये परमिट ऑल को बोल दो कि नहीं, तुम ऑथेंटिकेट होगे तभी तुम मैं दूंगा। इसको बोल देना है इज ऑथेन, क्या हुआ? ऑथेंटिकेट, इज ऑथेंटिकेटेड कि इज ऑथेंटिकेट। स्पेलिंग थोड़ा देख लेता हूँ क्योंकि वो वैसे लेते हैं बट स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए। हम क्या लिखते हैं? http dot authorize filter any request dot authenticated, ठीक है। देन इट इज गुड। इसको एक बार ऑन करूँगा। लेट्स सी if our purpose is fulfilled or not। okay, what token? Sorry.
चेक टोकन में हम इसको यूज करेंगे। ऑथराइजेशन में हमको क्या देना है, बेसिक ऑथ हमको यहाँ पे देना है रिसोर्स एंड accessibility. Yes. Now let me take a look if it is this, but if I don't use this, is it giving me unauthorized? मैं अगर बेसिक और दूंगा तभी मेरे को एक्चुअल टोकन का एक्सेस देगा। Okay, now I'll just copy the whole class and you can change by your own and just take a look what you can do. ठीक है, ये करो फिर टेस्ट करो and let me know. मैं कोड को कमिट कर देता हूँ। Let me know once you are done. ये चीज़ 2 बार अपलोड हो गया। Sorry, getting capture बाद में। Tell me when you are done, right? We will अभी मेरे ख्याल से आज इतना ही करते हैं। If you guys are, you know, happy to do things, so I can go ahead with the refresh token. If you are too loaded, then let me know. I'll stop it here, and you can just, you know, review the code and okay. Done? Everyone is done? ठीक है। नहीं तो रिफ्रेश टोकन एक बार कर देते। आई थिंक इट इज़ वेरी रिलेटेड टू दिस थिंग। जस्ट गिव मी 5 minutes. आई थिंक रिफ्रेश टोकन विल वर्क। ओके, because it is very related. It is not something, but it is something what I'm trying to tell you. You will understand why I want to, you know, correct this refresh token. Then we can go to the complex topic. ये जो चीज़ है इसमें कुछ क्वेश्चन है, you can ask me. कुछ चीज़ समझ में नहीं आया, कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, how we are using the first floor, second floor, how we are connecting,
Is everything is clear? Yes, no. Clear है? अंजलि? Okay. Okay, so we should close. What do you say? बोलो. Refresh token करा दे कि अभी let's close wrap up. ठीक है, इसको ही पहले समझते हैं. आई विल नॉट गो द रिफ्रेश टोकन. आई विल विद फ्रेश माइंड विल स्टार्ट रिफ्रेश टोकन. ठीक है. ओके, सो ये कोड तो अपलोड हो गया. नेक्स्ट क्या सैटरडे संडे ब्रेक राइट? यू वांट टू टेक द सेशन? आप लोग बताओ. या श्योर. ठीक है, चलो फिर मंडे मीट करते हैं. एंड आई थिंक वी नीड 2 to 3 more session, right, for Spring Security. Then we will move to the microservice where security will be, one part, but security is not the major part. तो इंटरेस्टिंग है. ठीक है. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एनीथिंग यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, कुछ भी है, जस्ट लेट मी नो. ठीक है. ये बहुत अच्छे से समझना है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे भी जाओगे, राइट, नाउ दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशन लेवल. आपको अगर पता है कि एक किसी ने बोल दिया कि मेरे को माइक्रो सर्विस डिज़ाइन, उसका सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करोगे, हाउ यू डिज़ाइन द सिक्योरिटी, you have the guts to say that okay, I can do it. I'll create a auth server. Every microservice will be a resource server, and every JS application will be my client, right? And yeah, then how to connect and everything you can do it, right? अभी हमने auth server बनाया. अभी auth server में थोड़ा improve करने के बाद we will implement the resource server. ठीक है. resource server के बाद हम एक client भी बनाएंगे. ठीक है, using the Spring Security. Then we will completely अंडरस्टैंड द होल फ्लो. तो आप जैसे पोस्टमैन से कर रहे हैं, हम सीधा यूआई से करके दिखाएंगे कि कैसे पूरा चीज़ जोड़ रहा है एक जगह से दूसरे जगह, राइट. दैट विल मेक यू मोर कंफर्टेबल एंड टू डू द थिंग्स. ओके, चलो. हैप्पी वीकेंड, एंजॉय द वीकेंड, एंड मंडे फ्रेश माइंड से स्टार्ट करते हैं. एनीवन हैज़ एनीथिंग टू शेयर?